को वो, क्योंकि मैं एक भूतनी थी उस फिल्म में, तो मैं बस आवाज़ें निकाल रही थी और वो बस डर रहे थे मेरे से। और हम बातचीत करते रहे उस सेट पर भी कि काश हमें मौका मिले कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे बड़े बड़े ड्रामे वाले सीन्स करें। Congratulations for Mr. and Mrs. Naik, first of all. Thank you. And my question is that you said that you had to go a rigorous strength training for this role. So I want to ask you, can you please elaborate? Was there any specific diet plan or any workout regimen that you have to follow? And and how did you, make time for skincare routine, and how do you maintain that radiant glow despite that intense schedule? I wasn't very radiant or glowing very much when I was shooting this film. So मैंने जब ये फिल्म की शूट शुरू की थी, प्रेपरेशन जब शुरू की थी, मैं उस वक्त आई थिंक गुड लक जेरी को प्रमोट कर रही थी, बवाल शूट कर रही थी, या नहीं मिली के आसपास के टाइम का था, एंड आई वाज अबाउट 8-9 kilos heavier, and Sharad was very stressed because he kept saying you don't look like a cricketer, and if you really want to do this film you need to start losing weight, you need to start training in cricket. तो मेरा डेली रूटीन ऐसे ही था। एट द पीक ऑफ माई ट्रेनिंग मेरे जो कोच थे अभिषेक नायर, वो कह रहे थे कि जिस तरह की ट्रेनिंग आपके साथ की गई है हमारे IPL प्लेयर्स के साथ भी नहीं की जाती, उतना इंटेंस था। So I used to wake up in the morning, I used to go to ahead of Powai, there's a place called Bhandu. I used to practice in the nets with some of his KKR players who he just recently recruited. तो 2 घंटे वहाँ में प्रैक्टिस होती थी, फिर मैं बैंड्रा आती थी, वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता था, कंडीशनिंग होता था, कार्डियो होता था, तो ये तकरीबन 1 घंटे तक चलता था। फिर मैं मीटिंग्स करती थी, अगर कोई शूट होता था तो मैं शूट के लिए जाती थी। फिर पैकअप के बाद मैं वापस बैंड्रा के किसी ग्राउंड में 2 घंटे और प्रैक्टिस करती थी। तो yeah, it was at least 5-6 hours of physical training every day. I was following a very low carb diet. And I was shooting simultaneously for other things, and my other directors and producers would get very upset because I'd keep losing weight and I'd keep, I guess, looking a little tired. Like I remember I went for one schedule of Bawal, and Nitesh sir looked at me and he was like, "ये मेरी दिशा नहीं है, कहाँ चली गई, तुम तो आधी हो गई हो." And I was shooting, I shot for 3 days of Devras, and even there they were like, "You're not like looking, you're not glowing like you were in the look test, you're looking a little tired." And that was just during the course of this film, and I think it went on for a while, but I'm feeling like myself a little bit. And of course injuries काफी थे, काफी लंबा process रहा इस film के shoot का। I wish you all the very best for Mr. and Mrs. Naik. Thank you. She's already asked you a question about your physical endurance. What about your mental preparation? Because I think that the game is more mental than physical, right? Definitely, and you know the physical prep takes a toll mentally, especially when you're juggling a million other things with it. I think every time I realized how much cricket meant to my director and the vision that he had, I felt an immense amount of pressure to deliver. And yeah, juggling my other roles and still trying to look a certain way while keeping up with the prep was quite intense. And more than that, I don't know if I've said this before, I think I have, but even the character of Mahima that I'm playing, while Sharan was writing the film, we were interacting quite a bit, so a lot of it was, I wouldn't say borrowed, but very closely related to a phase in my life. And then when we got to shooting the film, I had gotten over that phase and become a very different person, so it was weird for me emotionally to look back at the girl that I was and try to relate to her and play her and understand her and sympathize with her, because you end up judging the character so much and you end up judging the person that you were so much. So I guess that was the emotional toll. Hi Janvi, I'm Kanak from KM News. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब इस फिल्म को कर रहे थे तो राजकुमार आपके साथ आपका फिल्म करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कोई एक 5 फिल्म का जो आपका लाइफ टाइम वो पीरियड की ये पार्ट याद रहेगा हमेशा राजकुमार के साथ काम करने का? ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में। पहली फिल्म हमने की थी रूही, और उस फिल्म के दौरान हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा,
और हम एक दूसरे को वो, क्योंकि मैं एक भूतनी थी उस फिल्म में, तो मैं बस आवाज़ें निकाल रही थी और वो बस डर रहे थे मेरे से। और हम बातचीत करते रहे उस सेट पर भी कि काश हमें मौका मिले कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे बड़े बड़े ड्रामे वाले सीन्स करें, झगड़े करें, रोमांस करें, कॉमेडी करें। तो वो पूरा खुन्नस हमने मिस्टर मिसेस माही में निकाल दिया एंड इट वॉज ग्रेट। आई डोंट थिंक I could have asked for a better partner on this journey. हमने यहाँ लिखा है imperfectly perfect partnership, लेकिन मेरा ये मानना है कि me and Raj together were the perfectly perfect partnership. वो जिस तरह से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर कास्ट मेंबर, हर टेक्नीशियन को सेट पे सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और वो इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने कला से, फिल्म मेकिंग से, कि सबको उनको देख के दे यूज्ड टू फील एनर्जाइज कि नहीं हमें भी हमारा बेस्ट देना है। सो या हाय जानवी, हाय। मैं जितेंद्र शर्मा फ्रॉम दैनिक भास्कर। जानवी, पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में आपकी एंट्री में पहले तो तापमान बढ़ा दिया है आपकी हॉट मॉडल में, और भारतीय परंपरागत की साड़ी में आप वाकई कमाल लग रही है। अब आते हैं प्रश्न की ओर। जानवी, आपने माही मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म की, तो ये फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है समाज के अंदर, आपको क्या लगता है? बहुत सारे मैसेजेस हैं। इनफैक्ट मैंने और राज ने, हम स्क्रिप्ट सुनते ही फिल्म पर इस तरह ऐसे कूद गए क्योंकि ये फिल्म की जो उसूल है, जो ये फिल्म कहना चाह रही है, वो हमारे उसूलों से इतनी मिलती जुलती है। जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये फिल्म है सिर्फ क्रिकेट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म है सपनों के बारे में, सबसे ज्यादा सपनों के बारे में है। इतनी बार होता है लाइफ में कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आपको वो जो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है आपके फैमिली से, आपके नजदीकी लोगों से, वो नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जो जिसकी जरूरत पड़ती है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, वो नहीं होती है। तो ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जिनको हिम्मत नहीं मिली कि वो अपने सपनों के पीछे भागे। उन लोगों के बारे में भी है जो कि अपने पार्टनर्स या दोस्त या फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं उस जर्नी में, उस अनुभव में। और ये फिल्म है पति पत्नी के बारे में, कैसे उनके बीच में प्यार है, अरेंज मैरिज में कैसे आप एक दूसरे को डिस्कवर, जानने लगते हैं, शादी के बाद प्यार करने लगते हैं। तो ये उन रिश्तों के बारे में है, बाप बेटे के रिश्ते के बारे में है। आई थिंक अब जितने भी बड़े हो जाए, वो पापा का वैलिडेशन हमेशा मायने रखता है, हमेशा एक इंसान के लिए जरूरी होता है। तो ये फिल्म इन सारी चीजों के बारे में, और कैसे हम इस दौर में फेम के पीछे कितने पागल हुए हैं, वैलिडेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे इतने दीवाने हैं। तो वो हमारे मानसिक स्थिति को कैसे अफेक्ट करता है, ये इन सारे चीजों के बारे में है।